جی تو ہم نے پڑھا ہے اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، جہاں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ توبہ بنیادی طور پر مسیحی توبہ ہے، دل کی تبدیلی۔ دل کی تبدیلی ہے تو توبہ ہے، اگر دل تبدیل نہیں تو توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے بنیادی مطلب کو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مطلب گناہ کو ماننا، دوسرا گناہ کو چھوڑنا، اور تیسرا خدا کی طرف لوٹ آنا۔ گناہ کو ماننا بہت بڑی بات ہے۔ گناہ مانتے نہیں ہیں ہم۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ گناہ گار ہیں تو کیا وہ مان جاتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں؟ وہ ریزسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو گناہ گار نہیں ہوں، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ ہوں گے، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ پہلی بنیادی وجہ تائب ہونا۔ توبہ کا مطلب ہے تائب ہونا، جھک جانا، شکستہ دل ہو جانا، اپنے آپ کو توڑ دینا خدا کے سامنے۔ تائب نہیں ہوتے، مانتے نہیں ہم گناہ، ہم گناہ کو نہیں مانتے۔ یہ بے حد افسوسناک بات ہے، یہ بے حد دکھی بات ہے کہ ہم گناہ کو مانتے ہی نہیں۔ ماننا کہ میں گناہ گار ہوں، میں موروثی گناہ گار تھا اور میں دنیا میں بھی گناہ گار ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں۔ جانے انجانے کی بھی کبھی کبھی ہم شک شبے والی کہانی کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم گناہ کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں؟ مجھے یہ یقین ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ مانتے ہی نہیں۔ میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ توبہ کرنا، یسوع مسیح پر مکمل ایمان رکھنا نجات ہے۔ اگر ہمارا دل تبدیل نہیں ہے تو ہم کسی طرح بھی توبہ نہیں ہے۔ نجات اگلا قدم ہے، توبہ کے بعد نجات ہے، یا توبہ سے ہی نجات ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت سال پہلے کی بات ہے، غالباً یہ 1990 کی بات ہے، مارچ کا مہینہ ہوگا، اور یہ بہت پرانی بات ہے، میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا ہے۔ 35 برس ہو گئے اس بات کو۔ 35 برس، کتنے برس؟ 35 برس پہلے خدا نے مجھے یہ احساس دیا کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیے، میرے آباء و اجداد نے گناہ کیے تھے، اس لیے میں مایوسی طور پر بھی گناہ گار ہوں۔ 35 برس پہلے آپ سوچیں، جب میری عمر 14 سال اور 3 مہینے تھی، اس وقت مجھے گناہ کا احساس ہوا کہ میں گناہ گار ہوں، اور آج 49 سال اور 9 مہینے میری عمر ہو گئی، 3 مہینے بعد 50 سال کا، خداوند کی اگر مرضی ہوئی تو۔ ان 35 سال اور کچھ اور اوپر وقت نے مجھے احساس دیا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ میں نے سیکھا ہے، لڑک پن کی عمر سے میں نے سیکھا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے کہ انسان کا شکستہ دل ہونا ہی اسے خدا کے نزدیک کرتا ہے، ورنہ انسان خدا سے دور رہتا ہے۔ تکبر، انا اسے اور دور لے جاتی ہے۔ آج کا انسان شکستہ دل نہیں ہو رہا۔ آج کا نوجوان جو 20 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، اسے آج بھی یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ گناہ گار ہے، اسے مسیح کی ضرورت ہے، اسے یسوع کی ضرورت ہے۔ کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 55 سال کا ہے، کوئی 48 سال کا ہے، کوئی خاتون 40 سال کی ہے، اسے آج بھی احساس نہیں ہو رہا۔ تو یہ بے حد خطرناک صورتحال ہے۔ ہم
एक ऐसे कुएं की तरफ जा रहे हैं जिसमें गिरने से हमारी हमेशा की मौत वाक़ई होगी। इस जिंदगी में हम अच्छी बुरी कमजोर गरीबी की जिंदगी भी जी लेते हैं, लेकिन हमेशा की मौत हमें वीरान कर देती है, खुदा से दूर कर देती है। हमें यह एहसास करना पड़ेगा कि हम गुनहगार हैं, हमें पछताना पड़ेगा अपने गुनाह पर और खुदा की तरफ लौटना पड़ेगा। इसके बगैर हमारा कोई बचाव नहीं। आज सुबह हमें यह फैसला करना चाहिए। खुदावन के कलाम में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ, वापस आओ, तौबा करो और रजू लाओ। हम तो छोटे छोटे मामलात में फंसे हुए हैं, कोई मामूली नशे में फंसा हुआ है। आप देखें ये नस्वार और ये इस तरह के नशे, ये मामूली नशे, इनमें फंसकर हम अपनी जिंदगियों को जहन्नम की तरफ लिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अचानक एक दिन हमारी डेथ होगी। आपको पता है कि इन 2 सालों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किन लोगों को हुए? पता है आपको? 15-16 साल से 32 साल के दरमियान के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक हो रहा है। अभी मैं रिसेंटली हैदराबाद में था तो एक 22-23 साल के नौजवान को हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हुई है, क्रिश्चियन की। 22-23 साल का नौजवान। कभी आपने सोचा था कि 22-23 साल के नौजवान को हार्ट अटैक हो रहा है? कितनी ही जिंदगियां चली गई जहन्नम के रास्ते पर, गुनाह को नहीं कबूल किया। आपकी इस बस्ती में, सजावल की इस बस्ती में कितने ही लोग हैं, नौजवान हैं, जो गुनाह की तरफ जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल कुछ नहीं है। कितने बूढ़े गुनाह की तरफ जहन्नम में चले गए। क्या किसी का जनाजा करके कोई पादरी झूठ बोल दे? आपके पादरी साहब तो नहीं बोलते होंगे, मैंने इनको कहा है भाई किसी के लिए झूठ नहीं बोलना कि ये बादशाही में जाएगा, ये वहां जाएगा, नशा करते हुए शराब पी पी के मर गया और वो कहां से जाएगा बादशाह में? झूठ नहीं बोलना, मैंने पादरी साहब को मना किया हुआ। जनाजे पे कभी झूठ नहीं बोलना, सच बोलो। हाँ, किसी को हर्ट ना करो, ये ना कहो कि ये मवाली है तो ये जहन्नम में जाएगा, बस दुआ करो उनके खानदान की तसल्ली के लिए। लेकिन याद रखो कि जो जहन्नमी है उसको कभी खुदा का बंदा ना कह के जनाजा करना। 2 टोक। मुझे बेहद दुख होता है जब इस बस्ती में कोई जनाजा होता है तो मुझे दुख होता है। भाई तारिक जब मुझे बताता है कि फलां शख्स दुनिया से चला गया, पहली सोच मुझे क्या आती है? आप सोचो, 15 साल की आपके साथ रफाकत के साथ साथ मुझे तो आपके हर एक खानदान का पता है। आपको पता है कि पहले साल में मैंने हैदराबाद से यहां कितने विजिट किए थे? शायद आपको पता भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं तो मुझे याद है 126 विजिट किए थे पहले साल में। 365 दिनों में से 126 दिन मैंने आपके साथ गुजारे थे, और इनमें से ज्यादातर जो ट्रैवल था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मैंने किया था। वो यादें मेरे पेपरों में लिखी हैं, मैं हर एक शख्स को यहां जानता हूं। और पादरी साहब से आप पूछें, जब मैं इनको फोन करता हूं तो बस्ती की एक एक गली से शुरू करता हूं, फलां का बताओ। पादरी साहब मैं क्या पूछता हूं, मैं पूछता हूं भाई यूनस की सुनाओ, वो चर्च अभी तक नहीं आता या आता है तो आप उसके लिए दुआ करो, मैं भी उसके लिए दुआ करूंगा। वो भाई पतरस के खानदान के बारे में उनका क्या हाल है, भाई बुल्ले के खानदान का बताओ उनका क्या हाल है, भाई शौकत के खानदान का बताओ उनका क्या हाल है। पादरी साहब को मैं बहुत क्यों इन लोगों के लिए मैं पूछता रहता हूं, इनको याद करता हूं, इसलिए कि मैं इनके लिए दुआ करता हूं कि ये तौबा कर लें, ये नजात हासिल कर लें। और जब किसी की डेथ हो जाती है तो मैं कहता हूं तारक भाई एक और जिंदगी जाया हो गई, एक और शख्स बगैर खुदा के साथ रिश्ता बनाए इस दुनिया से चला गया।
एक और शख्स नाकाम हो गया, एक और बहन नाकाम हो गई, एक और भाई नाकाम हो गया। आए इनके लिए दुआ करें, इनके लिए इनकी जिंदगियां बदल जाएं, ये तौबा की तरफ आ जाएं। इनको समझ नहीं है, मैं हमेशा इसको कहता हूं कि इन्हें समझ नहीं है। मुझे 14 साल और 3 महीने की उम्र में ये समझ आ गई थी कि अगर मैंने तौबा ना की तो मैं खुदा की राह पर कभी नहीं जाऊंगा, और जब मेरी डेथ होगी तो मैं सीधा कहां जाऊंगा? बोलिए तो सही, कहां जाऊंगा? सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप तौबा नहीं करोगे तो आप सब भी वहीं जाओगे, जहन्नम में जाओगे। तो तौबा हमें खुदा के करीब करती है। निजात हासिल करना बहुत जरूरी है। आप ये सोचें कि हमारी निजात के लिए खुदावन यीशु ने खून बहा दिया, इसके लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। सच्ची तौबा दिल की तब्दीली है। कई लोगों ने तौबा की, बपतिस्मे भी यहां लिए, लेकिन झूठी तौबा की। कई लोगों ने यहां तौबा की, बपतिस्मे लिए, लेकिन झूठी तौबा की, जिंदगी को खतरे में डाला, फिर से नशा किया। मैं शुक्रगुजार हूं इस बस्ती की बेटियों के लिए जिनकी जिंदगियों का नूर, स्पिरिचुअल नूर, रूहानी नूर मुझे मुतमईन करता है, मेरे दिल को मुतमईन करता है कि ये बेटियां खुदावंद की बेटियां बन गई। इन बेटियों ने बहुत जल्दी खुदावंद को अपनी जिंदगी में जगह दे दी है। और चलें, यही हमारा विरसा है, यही हमारी मिरास है। हम इनके लिए दुआ करेंगे। जब ये अपने घरों में जाएंगी तो पूरे पूरे घरानों को निजात की तरफ ले आएंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपने काम को जारी रखे हुए हैं। बेदिल नहीं होते, घबराते नहीं। जब भी आपके पास आने के लिए कसद करते हैं तो पहले से दुआ करते हैं कि खुदावंद किसी एक जिंदगी पर काम कर, उसे बदल दे, क्योंकि निजात के बगैर, तौबा के साथ ही हमारी बचत है, और निजात के बगैर हम खतरे में हैं। निजात के लिए सच्ची तौबा जरूरी है। कई लोगों ने अपने आप को और खुदा को धोखा दिया, तौबा की, ट्रैक बदल लिया। जब मुझे पता है तो क्या खुदा को पता नहीं है? जब मुझे पता है, मैं तो एक इंसान हूं, आपके दरमियान रहता भी नहीं हूं, साल में 2 दफा 3 दफा आ जाता हूं, कभी मौका मिले तो 4 दफा। इस दफा मैंने पादरी साहब को कहा है कि अगले साल मैं 5 दफा आने की कोशिश करूंगा, अगर जिंदा रहा तो। खुदावन के पास चला गया तो फिर मेरा काम खत्म, फिर कोई और आएगा, फिर कोई उसके बाद और आएगा। ये दुनिया तो इसी तरह चलती है। लेकिन मुझे तो जब याद है कि फलां शख्स ने तौबा करके फिर से गलत जिंदगी गुजारी है, तो खुदा को कैसे पता नहीं होगा, जिसकी आंखें सीसीटीवी कैमरों से भी ज्यादा हमें वॉच करती हैं, वो देखती हैं। मुझे यूं लगता है कि हर वक्त मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मैं ट्रैवल करता हूं, वो मुझे देखता है। मैं कहीं बातें करता हूं, वो मेरी बातें सुन रहा है। मैं किसी से मिलता हूं, दरवाजे बंद करके भी हम जब गुनाह करते हैं तो उन बंद दरवाजों के अंदर भी खुदा की आंखें हमें देख रही होती हैं, वो हमें वॉच कर रही होती हैं, और खुदा का निजाम हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। हम समझते हैं कि हम शायद बड़े होशियार हो गए। सच्ची तौबा करनी जरूरी है, ये तब्दीली लाती है, झूठी तौबा किसी काम की नहीं। मेरा उन तमाम लोगों को मशवरा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया, क्या आप मुझे मेरे साथ मिलकर अपना हाथ दिखाएंगे कि कितने लोगों ने यहां बपतिस्मा ले चुके हैं? हाथ दिखा सकते हैं आप लोग? बहुत अच्छी तादाद है, शुक्रिया आप सबका। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा शख्स जो बपतिस्मा लेकर तौबा करने की अहद करके वापस मुड़ा है, मैं उसे दावत देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आज उन्हें बुलाने के लिए आया है, आपको बुलाने के लिए आया है, आपको बहाल करने के लिए आया है।
यीशु यहां मौजूद है। उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके। हम तो बहुत से हैं। आज यीशु उनके लिए आया है। जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, वो भी जरा अपना हाथ दिखा सकते हैं मेरे साथ? अपना हाथ दिखाएं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। जिन्होंने नहीं लिया, काफी लोग हैं। कई बूढ़े हैं, कई जवान हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु आपसे प्यार करता है और वो आपकी जिंदगी को नया बनाने के लिए आज सजावल में मौजूद है। आपके पास आया है और कह रहा है, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, आराम में शामिल करूंगा। तुम्हें बचाने आया है, तुम्हें पैगाम देने आया है। ये मत सोचिएगा कि पादरी अकरम आया है, बल्कि खुदा मुझसे पहले आया है। यीशु मुझसे पहले आया। यीशु पर मुकम्मल ईमान ले आए। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 है और इफिसियों 9 बाब की 2 बाब की 8 और 9 है। कोई एक रेफरेंस पादरी साहब और कोई एक रेफरेंस भाई यूनुस पढ़कर हमारी मदद कीजिएगा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी है आपसे। खुदा ने आपसे कैसी मोहब्बत रखी है और आप अभी तक उसे उसकी मोहब्बत का जवाब नहीं दे रहे। जिन्होंने तौबा नहीं की है, उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी हासिल करे। आपके लिए यीशु ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और आज तक आप यीशु का हाथ पकड़ने से हिचकिचा रहे हैं। ये क्या है नशा यीशु के सामने? हमें एक ही दिन में कहना चाहिए, मैंने ये नशा छोड़ा, मैंने बदकारी छोड़ी, मैंने ज़ना छोड़ दिया, मैंने हरामकारी छोड़ दी, मैंने चोरी, बेईमानी, झूठ बोलना, गाली बकना सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। और वो लोग, ये पढ़िए इफिसियों का खत 2 बाब 8 और 9 आए। भाई पढ़ने में मदद कीजिएगा। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली। देखिए भाई जी जरा रुकिएगा। पहले हमने पढ़ा है एमाल की, कौन सा रेफरेंस? यूहन्ना की इंजील पढ़ा है, 3 बाब की 16 आयत पढ़ी है। उसमें खुदा गैर ईमानदारों से बात कर रहा है, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है और मैं आया हूं कि तुम नजात पाओ। और इफिसियों 2 बाब की 8 आयत में खुदा किससे मुखातब है? पढ़िए भाई जी दोबारा। ईमान से, तुमने तो ईमान से निजात पा ली थी, तौबा कर ली थी, तौबा करके बपतिस्मा ले लिया जी, ही से निजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। खुदा ने तुम्हें बख्शिश दे दी, फिर तुम वापस उसी रास्ते पर चले गए। तुमने वापस वही जिंदगी ज्वाइन कर ली है, वही रास्ता। तुमने खुदा की मोहब्बत का क्या जवाब दिया है? खुदा तुमसे बात कर रहा है, तुमने क्या जवाब दिया है? खुदा को रद्द कर दिया है? खुदा से पीछे हट गए? यीशु तो तुम्हें मुकम्मल ईमान से आगे बढ़ाना चाहता था, तुमने ब्रेक लगा दी है, तुम रुक गए हो। ये अफसोसनाक बात है बहनों और भाइयों। जब आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, तो यीशु ने तुम्हें निजात दे दी, अब तुम क्यों पीछे हटे हो? अब तो तुम्हें आगे बढ़ना था। इस पूरे शहर को और इस बस्ती को
تمہیں تبدیلی کے لیے کام کرنا تھا، تم خود پیچھے ہٹ گئے۔ خداوند کہتا ہے میں آج پھر سے تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، آؤ اور بحال ہو جاؤ، اور نئے لوگوں کو بھی کہ توبہ کرو، کیونکہ نجات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر صرف مانگنے کی دعا نہیں بلکہ شکر گزاری اور اعتراف سے خدا کے ساتھ گفتگو کریں۔ مانے خدا کے سامنے، خدا میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت غلط راستہ چن لیا، اب تو مجھے واپس لے لے، میں تیری بیٹی ہوں، تیرا بیٹا ہوں، کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ یسوع آپ کو پھر سے نیا بنانا چاہتا ہے۔ مت سوچئے کہ دنیا بہت لمبے ٹائم تک آپ کے لیے کھلی ہے، نہیں، مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ گزری رات ہی ہمارا آخری وقت ہو سکتا تھا، گزری رات ہی آپ کا اور میرا آخری وقت ہو سکتا تھا۔ اب سوچیں ہمارے آس پاس کے لوگ کیسے چلے گئے، کئی اچھے بھلے تھے، کئی صحت مند تھے، لیکن ان کی طرح ہم جہنم کا راستہ نہ اختیار کریں، چھوڑ دیں جہنم کے راستے کو اور زندگی کے راستے پر آ جائیں۔ یہی ایک بہتر اور مکمل پیغام ہے کہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے بھائی جی، 3 باب کی 19ویں آیت، 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، سوری 3 باب کی 19ویں آیت جو ہماری سندھی آیت تھی، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، تازگی کے دن آئیں۔ یہ گانے سن سن کے ہم سمجھتے ہیں ہمارے تازگی کے دن آ گئے۔ آج کل کے بچے بچیاں گانے سنتے ہیں نا تو اسی لہر میں اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہیپناٹائز ہونا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیپناٹائز ہونا، خود کو اس منظر میں ایڈجسٹ سمجھنا۔ بچے اور بچیاں جو توبہ نہیں کرتے، پتہ ہے توبہ نہ کرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہیپناٹائز مائنڈ ہو جانا، ان گانوں سے متاثر ہو جانا، ان موسیقی سے، شاعری سے متاثر ہو جانا، خود کو اس منظر میں کھڑا کر لینا اور سمجھنا کہ وہ میں ہی ہوں۔ کبھی آپ نے ان گانے گانے والوں کو دیکھا ہے ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ یہ جو نئے گانے 1990 میں لکھے گئے نا، جو سب سے زیادہ سنے جاتے ہیں نا ہندوستانی انڈین گانے، یہ جن 2 لوگوں نے لکھا ہے وہ دونوں اجڑے ہوئے لوگ ہیں، دونوں اجڑے ہوئے لوگ ہیں، تباہ ہیں۔ ان میں سے ایک ایتھیس ہے، خدا کوئی نہیں مانتا اور ٹی وی پر بھی کہتا ہے، جاوید اختر، ایک تو اس نے لکھے ہیں یہ، اور ایک لکھے ہیں گلزار نے، ان کا نام تو چرن سنگھ کر کے ہے کچھ، لیکن ان کا تخلص گلزار ہے، اور تیسرے سلیم بھائی صاحب نے لکھے ہیں۔ یہ فلمیں اور یہ گانے ان 3 لوگوں نے لکھے ہیں۔ سلیم، محمد سلیم کہہ لیں ان کو، سلمان خان کے والد، جاوید اختر صاحب اور گلزار۔ آپ ان تینوں کی زندگیوں کو پڑھ لیں، میں نے نام لیا ہے یہاں، سوشل میڈیا پر بھی ہم ڈالیں گے، ان کی زندگیوں کو ریسرچ کریں۔ گلزار نے اپنی زندگی میں شادی کی، بہت مشہور اداکارہ، اب میں نام ان کا بھول رہا ہوں، 2 سال کے بعد زندگی اچڑ گئی۔ ایک بیٹی جو ہاسٹلوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا کر بڑی ہوئی ہے، اور کبھی ماں کے سائے سے محروم، کبھی باپ کے سائے سے، یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہ، گناہ اور ناراستی کی بڑی ہستیاں ہیں یہ۔ اور جاوید اختر صاحب نے بالکل نوجوانی میں اپنی بیوی سے الگ ہو کر ایک دوسری اداکارہ سے شادی کر لی۔ اب درمیان میں پتہ نہیں کیا کچھ زندگی میں آیا کہ وہ شخص خدا کو ہی چھوڑ گیا۔ مذہباً تو وہ مسلمان تھا، ایک ہندو، ایک مسلمان، اور تیسرا بھی کہلانے کے لیے مسلمان، اور تیسرے جو سلیم خان صاحب ہیں انہوں نے ایک ہندو عورت سے شادی کی اور ان کے گھر میں مندر بن گیا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ہیں، ایتھیس ہیں،
और इनके गानों पर आज हमारे बच्चे और बच्चियां झूम रहे हैं और तसव्वुराती तौर पर इनको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, हैप्नोटाइज हो जाते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो हम बन गए हैं। कभी इन अदाकारों की जिंदगियों को रिसर्च करो, सर्च करो इनकी जिंदगियां, उजड़ी वीरान और तबाह हाल इनकी जिंदगियां हैं। कोई खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है, मुसर्रत नहीं है। बेरार रवि के शिकार ये लोग हैं। हम इन्हें अपना आइडियल बनाए बैठे और इनकी तस्वीरें लगाए बैठे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, नौजवान बेटे और बेटियों को अपना आइडियल यीशु को बनाएं और यीशु के किरदार को अपना आइडियल बनाएं और तौबा करें अपनी गलतियों की, गुनाहों की, नाराजगियों की तौबा करें, क्योंकि यीशु आपसे मिलने यहां आया है। और तौबा वो लोग वापस आए, लौट आए जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया लेकिन चले गए। यीशु उनको भी लेने आया है, मिलने आया है और आए वो भी यीशु की तरफ लौट आए। तौबा की असल रूह के मुताबिक दिल की तब्दीली के लिए अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। आइए अपने सरों को झुकाएं आज सुबह और अपने दिलों को भी झुकाएं। हम दुआ करेंगे। हम आप सबकी जिंदगियों के लिए दुआ करेंगे। अगर आप में से कोई बहन या भाई आज अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है तो वो खड़ा हो जाए, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। अगर कोई अपनी जिंदगी देना चाहे, हालेलुया भाई जी, बहन जी, हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। और कोई बहन या भाई अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहे तो हम उनके लिए, खुदावंद का शुक्र हो बहन के लिए। और कोई भाई या बहन, हालेलुया बेटा, मां जी के लिए खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो कि वो अब हमारी जिंदगियां बदलता है। बेटे और बेटियों के लिए भी मौका है, हालेलुया, आप अपनी जिंदगियों को खुदावंद के सुपुर्द कर रहे हैं, ये अच्छा मौका है। और भी कोई बेटा और बेटी, कोई भाई, कोई बहन खड़ा होना चाहता है तो मैं उसके लिए दुआ करूं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद का शुक्र हो आप तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में नई रूह फूंकने को है। तौबा हमारी जिंदगी, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो इन जिंदगियों के लिए, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के पैगाम को कबूल करें, खुदावंद के नाम को कबूल करें। वो आपके लिए हाथ बढ़ाए खड़ा है। आइए हम दुआ करेंगे। मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, आज सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं, तेरे गहरे फजल, तेरे रहम के लिए, तेरे करम के लिए शुक्रगुजार हूं कि तू अपने लोगों से कलाम करता है। तूने आज अपने लोगों से कलाम किया है और मैं इन 10-12 जिंदगियों को भी तेरे सुपुर्द करता हूं। इन बहनों को, इन भाइयों को तेरे सुपुर्द करता हूं जिन्होंने आज तौबा के लिए अपने आप को पेश किया है, निजात के लिए अपने आप को पेश किया है। खुदावंद तो इनकी जिंदगियों को महफूज बना, इन्हें बरकत दे जो दिल में इरादा किए हुए हैं। हालेलुया खुदावंद, जो दिल में इरादा किए हुए हैं, जो दिल में इरादा किए हुए हैं, उनके इरादों को मजबूत बना खुदावंद। तू बरकत दे खुदावंद, तू रहम कर खुदावंद, तू तरस खा खुदावंद। मैं इन्हें तेरे सुपुर्द करता हूं और तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू, शुक्रिया।